Now let's have a look at the northern plains, and we have already discussed how northern plains were formed and where northern plain lies. So northern plain lies in the foothills of the Himalayas, right? So these are the Himalayas, and in the foothill of Himalayas we have the densely populated favorable climate के साथ adequate water supply के साथ we have the northern plains, Indian northern plains. You got it? Okay, so northern plains are formed from the three major river systems with their tributaries: Indus, Ganga, Brahmaputra. So when I said that in northern plains have adequate water supply, so what I mean that they are formed by the three major river system. And what are these three major river system? The Indus river system, the Ganga river system, and the Brahmaputra river system. Okay. Here we have seen these are the northern plains, and we have seen that in the river map we will see that यहाँ पर Indus, Ganga और Brahmaputra river systems lie करते हैं. तो the northern plains are formed by the three river system, which are the Indus, Ganga and the Brahmaputra. Northern plains are formed from the continuous deposition of alluvium in the basin lying at the Himalayan foothills. We have already understood that, right? So when during that story we have seen how the depression formed at the foothills of the Himalayas, and then वो जो depression था उसमें sediments और alluvium got deposited. How? Because of the rivers that are coming from the Himalayas. So when rivers flow, they carry sediments and alluvium with them, and that is how the depression at the Himalayan foothills got filled with alluvium, and this is how we got our Himalayan northern plains at the foothill of Himalayan mountains. So northern plains are 7 lakh square kilometer in area, 2400 kilometer in length, and 240 to 320 kilometer broad. Okay, so in area they are 7 lakh square kilometer, and in length they are 2400 kilometer, and in broad मतलब कितनी चौड़ाई है, that is 240 to 320 kilometer broad. Okay, now they are densely populated physiographic division with rich soil, adequate water and favorable climate. Soil यहाँ की rich है क्यों? क्योंकि alluvium है ना, और rich soil का मतलब है अच्छी खेती बाड़ी, agriculture, right? And then we have adequate water here because of the three river system that that lies here, and then the favorable climate as well, right? So your work is to comment down the states that lies in the northern plains. Okay? वैसे यहाँ पर आपको मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से states हैं, but still you have to comment down and remember all the states that lies in the northern plains. Okay? Now the plain features riverine islands. Okay? So Majuli in the Brahmaputra is the largest inhabited riverine islands in the world. What are riverine islands? Riverine islands means एक river है, this is our river, यहाँ पर सब पानी है. Okay, riverine island means exposed land which is surrounded by water. Here this is water. Okay, let's make water blue colored. This is water here, and we have riverine island. So island का मतलब तो पता ही है, land, exposed land which is surrounded by water. अब जो river में islands आए वो riverine islands हो गए. Okay. Now Majuli in the Brahmaputra is the largest inhabited riverine island in the world, and you need to remember this interesting fact. It is interesting, right, that Majuli in the Brahmaputra is the largest inhabited riverine island in the world. Now northern plains के divisions को हम देखते हैं. Northern plains are divided into 3 parts.
अब what are these three parts? Let's have a look. So first one is the Punjab Plains. और ये पंजाब प्लेन्स क्या है? They are the western part of the northern plains, right? So we'll have a look here. They are the western part. ये northern plains है. इनका जो western part है, इनका जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये पंजाब प्लेन्स है. ओके, Punjab plains are the western part of the northern plains and they are formed by the Indus and its tributaries. You already know ना, यहाँ पर Indus अपनी tributaries के साथ बहती है, including Kashmir. So Indus river originate in Tibet, यहाँ से, and then from Kashmir it flows towards Pakistan, right? So जब हम बात करते हैं पंजाब प्लेन्स की, तो पंजाब प्लेन्स में हमें क्या देखने को मिलता है? इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ओके, मच पार्ट ऑफ इट लाइज इन पाकिस्तान. मच पार्ट ऑफ पंजाब प्लेन्स आर लाइज इन वेयर? पाकिस्तान आर नेबर फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, फ्रॉम द वेस्टर्न साइड. ओके, साइड. सो फीचर ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दोआब. अच्छा, व्हाट आर दोआब? जो पंजाब प्लेन्स है यहाँ पर दोआब्स देखने को मिलते हैं. अच्छा, व्हाट आर दोआब? दोआब मीन्स ये दो वर्ड से बना है, दो एंड आब. आब मीन्स पानी, राइट? इसी तरह पंजाब बना है, पंज मीन्स पांच एंड आब मीन्स पानी, यानी कि पांच, 5 waters, and similarly doab means 2 waters. Now what is it? Doab means a tract of land lying between two confluent rivers. यहाँ से दो rivers आ रही है, एक river इधर से आ रही है और एक river इधर से आ रही है, right? अब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो land है ना, इन दो rivers के बीच की ये जो land है, इसको हम कहते हैं दोआब. The land, the tract of land between two confluent river is known as दोआब. और ये कहाँ देखने को मिलता है? पंजाब प्लेन्स में. ओके, जो कि वेस्टर्न पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स का. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज द गंगा. द गंगा प्लेन्स. गंगा प्लेन्स कहाँ पर होते हैं? बिटवीन तीस्ता एंड घग्गर. ओके, दिस इज घग्गर एंड तीस्ता. ओके, सो जो यानी कि कहाँ पर हो गया ये वाला पोर्शन, यू सी. ओके, सो इट स्प्रेड्स ओवर द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. व्हाट? Ganga plains, which lie in the between Ghaggar and Teesta. Now the third part of northern plain is the Brahmaputra plains, and where are they? They are lying in Assam, यानी कि this portion, यानी कि this map actually shows the 3 parts of northern plains. First one Punjab plain, second one Ganga plain, and the third one being पंजाब ब्रह्मपुत्र प्लेन. सो ब्रह्मपुत्र प्लेन कहाँ लाई करते हैं? असम में. यू सी हियर. ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर. एंड डाइवर्स रिलीफ फीचर का मतलब है कि हम अभी देखेंगे वो डाइवर्स रिलीफ फीचर क्या है. अभी के लिए बता दें, भाबर, तेराई, भंगार एंड खादर. दीज आर वेरी सिंपल फीचर्स. लेट मी एक्सप्लेन यू, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. Okay, so when we are talking about northern plains, so they can be divided into 4 regions according to variation. Now what is भाबर? सबसे पहले हम देखते हैं भाबर के बारे में. हम लोग 4 डिवीजन वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, 4 डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं भाबर. अब क्या होता है, रिवर्स हिमालयन माउंटेन से नीचे उतरती हैं. द रिवर व्हेन दे डिसेंड्स ओके फ्रॉम हिमालय, तो क्या करती हैं, हमें पता है वो सेडिमेंट्स लाती हैं, पेबल्स लाती हैं अपने साथ, और फिर वो हिमालय एक नैरो बेल्ट में क्या कर देती हैं? डिपॉजिट कर देती हैं. सो व्हाट हैपेंस हियर?
वी हैव सीन दैट दीज आर द हिमालयाज, और यहाँ पर से जब रिवर्स उतरी नीचे, ये रिवर्स है, जब यहाँ पर रिवर उतरी तो इन्होंने यहाँ पर जो अपने साथ पेबल्स लाई, क्या जो अपने साथ सेडिमेंट्स लाई, वो इन्होंने कर दिया यहाँ पर डिपॉजिट, और ये एक नैरो बेल्ट है, यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, और इस बेल्ट को क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं भाबर। और यहाँ पर क्या होता है, ये नैरो बेल्ट ऑफ पेबल्स है, यहाँ पर नैरो बेल्ट है जहाँ पर रिवर्स पेबल अपने डिपॉजिट कर देती हैं। और ये इसकी आप एक बार ये आप जानिए कि ये 8 to 16 किलोमीटर लॉन्ग है, एंड इट इज़ पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक। ओके, it is parallel to the slopes of शिवालिक। So ये for example शिवालिक है the southernmost part, और शिवालिक के फुटहिल पर ये शिवालिक है, यहाँ पर ये रेंज है, और यहाँ पर ये पैरेलल है, यहाँ पर ये है भाबर। तो भाबर जो है वो एक बेल्ट है पेबल्स की, और ये इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, दैट इज 8 to 16 kilometer wide. Okay, so what we have seen here in the foothills of Shivalik, we have seen a narrow belt of pebbles that are deposited by the rivers coming down from the Himalaya. Those pebbles form a 8 to 16 kilometer wide belt which is called Bhabar. Okay, so it's very easy to remember. So it is parallel to the slopes of Shivalik, and you need to remember that stream disappear in this belt. So what happened, जो streams हैं they disappear in this belt. streams आती हैं, rivers are coming, और वो disappear हो जाती हैं, जो deposited belt है pebbles की उनमें disappear हो जाती है। okay, यानी कि let's have a look at a lovely diagram. For example, this is Greater Himalaya, this is Lesser Himalaya, and this is Shivalik, right? So यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर deposited pebbles, which is our belt, the Bhabar belt, और यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर सब stones and rocks, stone, sediments, pebbles, तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं। हमने अभी भाबर देखा, एंड नाउ वील बी लुकिंग एट तेराई। सो व्हाट इज तेराई? तेराई इज अ रीजन विच इज 20 to 30 किलोमीटर वाइड, एंड तेराई वो जगह है जहाँ पर स्ट्रीम यानी कि रिवर्स जो डिसअपियर हो जाती हैं भाबर में, वो री इमर्ज होती हैं तेराई में। ओके, सो साउथ ऑफ भाबर, सो दिस इज आवर भाबर बेल्ट, and now this in the south of Bhabar we have Terai belt. Okay, Terai belt is 20 to 30 kilometer wide, and it is this belt where the streams re-emerges. Okay, and when they re-emerge, it create a wet and swampy or marshy area. Okay, what does it mean? It means दलदली type area. Okay, तो अगर हम भाबर के कंपैरिजन में देखें तो भाबर है रॉकी, वहां पर पेबल्स हैं। ओके, वहां पर स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाती हैं, लेकिन जो तेराई है यहाँ पर स्ट्रीम्स री इमर्ज होती हैं, और यहाँ पर स्ट्रीम्स दोबारा एक्सपोज हो जाती हैं। नाउ अब जो ये तेराई है, इट यूज्ड टू बी अ थिक फॉरेस्टेड रीजन विद रिच वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट होता था और रिच वाइल्ड लाइफ होती थी। नाउ अब थी का क्या मतलब है, अब क्या हुआ, इसका ये मतलब है कि फॉरेस्ट हैज बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड सेटलमेंट पर्पस। एग्रीकल्चर और सेटलमेंट पर्पस के लिए जो फॉरेस्टेड एरिया था, जो तेराई में फॉरेस्टेड एरिया था, उसको क्लियर कर दिया। अब क्या हुआ कि जब 1947 में माइग्रेंट्स आए पाकिस्तान से, उनके सेटलमेंट के लिए तेराई को क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर जो थे एक फॉरेस्टेड रीजन था विद रिच वाइल्ड लाइफ, उसको क्लियर कर दिया गया, और अब हम यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स को देख सकते हैं। और क्या एग्जाम्पल है उन नेशनल पार्क्स के? जिम कॉर्बेट,
okay, Kaziranga, Dudhwa National Park, and several other national park. Okay, so these are I'm sure that you must have heard the name Jim Corbett and all these national park, and if not तो I think जो ये prominent national park हैं आपको उनकी list बनाकर उनको learn करना है कि ये कहाँ lie करते हैं. Okay, now let's have a look at this diagram. So we have Himalaya here, right? Then we have in the foothills Bhabar with sediments here. Bhabar यहाँ पर है, यहाँ पर streams disappear हो जाती हैं. Then तेराई में re-emerge होती हैं. तेराई जो कि एक wet, swampy और marshy area है, यानी कि दलदली area है. और फिर हम देखते हैं, अब हम देखेंगे भंगार और खादर. अब हम देखते हैं भंगार और खादर क्या होते हैं. And we have already studied भाबर एंड तेराई. नाउ भंगार. ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर भंगार रीजन को. तो हम जब यहाँ पर हमने भाबर देखा, तेराई देखा, अब हमें भंगार रीजन देखना है. भंगार रीजन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट फॉर्म करता है नदर्न प्लेन का. वी हैव सीन 4 डिविजन्स इन नदर्न प्लेन. ओके, so Bhabar, Terai, Bhangar and Khadar. And now when we are this Bhangar, it is the largest region. Okay, Bhangar is the largest part of Northern Plain. Okay, and what is it? It is a part with older alluvium. Older alluvium का क्या मतलब है कि for example this is river valley. जब यहाँ पर फ्लडिंग होती है, जब इस रिवर में फ्लडिंग होती है तो ये वाले जो प्लेन्स हैं, सो व्हाट आर फ्लड प्लेन्स? फ्लड प्लेन्स मीन्स जब रिवर में फ्लड्स आते हैं तो जो प्लेन फ्लड की रीच में होते हैं दैट इज फ्लड प्लेन, राइट? वेरी सिंपल. सो जब इस रिवर में, इन रिवर्स में फ्लडिंग होती है तो यहाँ पर ये वाले जो रीजन है ये डूब जाते हैं, राइट? सो अब इनके डूबने से क्या होता है, जब पानी वापस उतरता है तो रिवर क्या छोड़ के जाती है? सेडिमेंट्स, अलुवियम, राइट? तो ये वाले जो रीजन है यहाँ पर सेडिमेंट्स और अलुवियम रिवर डिपॉजिट करती है. और जब यहाँ रिवर वैलीज में हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लडिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाले पोर्शन है ये डूब जाते हैं. एंड जब ये रिसीड होती है रिवर, जब फ्लड खत्म होता है, जब बाढ़ उतरती है तो क्या होता है, यहाँ पर जो ओल्डर जो अलुवियम होता है वो डिपॉजिट हो जाता है एंड यहीं से हमें मिलता है खादर. ओके, नाउ अब हम भंगार को देखते हैं. इसी के हम आगे चल के हमें मिलते हैं भंगार. तो ये खादर हो गया. दिस पोर्शन इज खादर एंड दिस पोर्शन, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं भंगार. ओके, तो एक बार देख लेते हैं. भंगार मीन्स ओल्डर अलुवियम. ओके, भंगार लाई अबव द फ्लड प्लेन ऑफ द रीजन. ये वाला फ्लड प्लेन है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं. इसके अबव यहाँ पर लाई करता है भंगार, right? And it contains calcareous deposit known as kankar. Bhangar contains calcareous deposit known as kankar. Okay? So जो soil है यहाँ की भंगार की वो calcareous है in nature. It is calcareous in nature and it is known as locally known as kankar. Okay? और हमने ये भी देखा कि जो भंगार है ये लार्जेस्ट पोर्शन फॉर्म करता है नदर्न प्लेन का, राइट? सो ये वाला जो पोर्शन है ये लार्जेस्ट पोर्शन फॉर्म करता है नदर्न प्लेन का एंड वी कैन सी हियर इन आवर डायग्राम एज वेल. सो ये पार्ट भंगार है, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट विच इज फ्लड प्लेन, दिस इज व्हाट वी कॉल खादर, राइट? सो दिस इज भंगार एंड दिस इज खादर. खादर के बारे में एक बार देख लेते हैं. द न्यूवर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन, यानी कि जब यहाँ वैली में हर साल बाढ़ आती है तो जो रिवर है वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है सेडिमेंट्स, राइट? सेडिमेंट्स एंड व्हाट?
सेडिमेंट्स के साथ अलूवियम. ओके, सो एवरी ईयर इट डिपॉजिट. अब एवरी ईयर डिपॉजिशन हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये फर्टाइल है, राइट. यहाँ पर फर्टाइल सॉइल अलूवियम का डिपॉजिशन हो रहा है. तो क्या होता है यहाँ पर कि न्यूवर एंड यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन, हर साल फ्लड प्लेन इन फ्लड प्लेन्स पर यानी कि खादर पर डिपॉजिशन होता है. They are renewed every year and are fertile. We have already studied, and they are ideal for intensive agriculture. So जहाँ alluvium है, इसका मतलब वहाँ fertility है soil में. इस हिसाब से यहाँ पर the soil, the flood plain get renewed every year because of the flood every year, and then since they are fertile, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा deposition हो रहा है every year, तो दे आर फर्टाइल. और फर्टाइल का मतलब है कि दे आर एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन, राइट. तो ये जो खादर रीजन है, दिस इज आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ओके, नाउ हमने क्या देखा, हमने 4 डिविजन्स देखी नदर्न प्लेन की, भाबर, तेराई, भंगार एंड खादर. जस्ट अ क्विक रिकैप. यहाँ से रिवर्स आई और अपने साथ जो सेडिमेंट लाई वो उन्होंने यहाँ भाबर में डिपॉजिट कर दिए. यहाँ पर रिवर डिसअपियर हो गई. अब ये वाला जो तेराई रीजन है, जो कि एक थिक फॉरेस्टेड एरिया हुआ करता था, और अब ये वेट और स्वैम्पी एरिया है, ये यहाँ पर रिवर्स री इमर्ज हो गई. यहाँ से री इमर्ज हुई तो यहाँ पर भंगार मिल गया हमें. भंगार इज ओल्डर अलूवियम. और नीचे गई रिवर तो यहाँ पर क्या आया हमारा खादर, विच इज द न्यूअर अलूवियम. ओके, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस होल स्टोरी, एंड दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर एज वेल, राइट. ओके, नाउ we'll have a look at our next physical feature, which is the peninsular plateau. अब peninsular plateau क्या होता है, हमने देखा, हमने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ पढ़ रखा है कि किस पेनिनसुलर प्लेटू किस तरह से फॉर्म हुआ, ये जो टेबल लैंड है किस तरह से फॉर्म हुई, एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, राइट. नाउ वी विल हैव अ लुक एट इट अगेन एंड इन अ लिटिल डिटेल. ओके, सो व्हाट हैपेंड, वी हैव स्टडीड हिमालयन रीजन. Himalayan के बाद we have studied northern plains, and now we'll be having a look at the peninsular plateau, and we have already seen and we have already studied how they are formed. Okay, and they are peninsular plateau forms one of the ancient landmass of on the earth's surface. How? क्योंकि ये तब फॉर्म हुआ था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट के तरफ ड्रिफ्ट करना शुरू करा था, यानी कि नॉर्थ ओवर ड्रिफ्ट करना शुरू किया था. तब डिस्टर्बेंस की वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, और वोल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पर मैग्मा बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ लावा, वो सॉलिडिफाई हो गया, और फिर हमारा क्या बन गया, टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलीन एंड इग्नियस रॉक. ओल्ड क्रिस्टलीन एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक. अब इग्नियस को आपको इस तरह से याद रखना है. इग्नियस का मतलब होता है फायर, समथिंग रिलेटेड टू फायर, एंड वी नो द मैग्मा इज hot and beneath the earth surface, right? So what happens, जब मैग्मा बाहर आया वही सॉलिडिफाई हुआ और हमारा क्या बना, टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर. तो इस तरह हमें याद रखना है कि जो मैग्मा बाहर अंदर से बाहर आता है, जो लावा बाहर आता है हॉट एंड फायरी, ओके, वो मैग्मा एक बनाता है इग्नियस रॉक. फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट इज अ इग्नियस रॉक. और ये कब बनता है, ये तब बनता है जब मैग्मा सॉलिडिफाई हो जाता है तो बेसाल्ट रॉक बनता है, और ये इग्नियस रॉक है. ओके, अब ये जो इग्नियस रॉक्स होते हैं यही दे अंडरगॉन चेंजेस, इनमें चेंजेस होती है और फिर हमें मिलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, राइट. सो अ टेबल लैंड लाइक स्ट्रक्चर composed of old crystalline igneous and metamorphic rock. igneous और sedimentary rock ही बनते हैं metamorphic rock. There is a rock cycle and we'll be studying it in the next classes. Okay, so
जो इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक्स हैं वही बनाती है मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, नाउ ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है दे वर फॉर्म ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। ओके, सो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड टुवर्ड्स यूरेशिया and thus we got our peninsular plateau and we have already studied it. It is one of the oldest landmass. Peninsular plateau is one of the oldest landmass, and do you know it is one of the most stable landmass as well. Broad and shallow valleys and rounded eroded hills. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी समझने के लिए कि जो for example, let's take the example of Himalaya. We have already learned that Himalayan peaks are lofty and they are very pointed peaks. Okay, Himalayan peaks are very much pointed, right? So Himalayan जो lofty mountains हैं और जो pointed peaks हैं हिमालय की वो इसलिए हैं क्योंकि they are formed recently. They are young mountains, right? They were formed 50 million years back only, around 50 million years. तो क्या होता है जब बहुत millions of years बीत जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो ये जो lofty peaks होती हैं ये erode हो जाती हैं और ये क्या बन जाती हैं, ये इरोड होकर ये फिर पहले इतना होता है, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर हमें मिल जाती इस तरह की शेप, राइट? तो ऐसा कब होता है? ऐसा राउंड हिल, राउंड शेप, राउंड पीक तब आती हैं जब बहुत सारे इयर्स गुजर जाते हैं और इन इयर्स में क्या होता है कि जो ऊपर की पीक है, पॉइंटेड पीक है, वो इरोड हो रही है। ओके, आहिस्ता आहिस्ता, एंड दिस इज how we get our ancient rounded hills. Okay, जब हम बात कर रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू की तो we have seen here कि क्योंकि ये ancient land mass है तो these are one of the oldest land mass है क्योंकि, तो इसीलिए इनकी जो वैलीज हैं वो ब्रॉड हैं और शैलो हैं, राइट? ब्रॉड है और शैलो है, यानी कि राउंडेड है, इरोडेड है। अब हम दो डिविजन्स देखेंगे। तो क्या होता है, जो आपके पेनिनसुलर प्लेटू है इसमें दो डिविजन्स हैं, एंड व्हाट आर दीज टू डिविजन्स? द वन सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड इज डेक्कन प्लेटो, राइट? द फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड here and the second one is the Deccan Plateau, and of course we'll be having a look at the location as well. So let's have a look. This portion is Peninsular Plateau, and you can see that it's written on your screen. This portion is Central Highlands. Okay, this is Central Highland and this part is the Deccan Plateau. Okay, this one is Central Highland and this is Deccan Plateau, and these are nothing but two divisions of Peninsular Plateau. So let's have a look. So Central Highlands lies to the north of Narmada, covering Malwa Plateau majorly, and in the north, in the south, there is Vindhyan Range, and on the northwest it is Aravallis. Let's have a look. This part is Central Highland, right? So in the south you can see Vindhyan Range, right? This is Vindhyan Range. In the northwest part you can see the Aravalli Range, right? And then it is covering a larger part of Malwa Plateau, right? You can see on your screen, and this is, we are talking about Central Highlands. जब हम जाते हैं इसके राइट हैंड साइड एक्सटेंशन पे, यानी कि इस तरफ जब हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एक्सटेंशन, और फर्दर ईस्टवर्ड जाएंगे तो हमें मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेटो। ओके, एंड ऑफ कोर्स वी विल बी हैविंग अ लुक एट इट अगेन। सो ये रहा आपका सेंट्रल हाईलैंड्स, द सेंट्रल हाईलैंड्स। जब हम यहाँ पर जाएंगे तो बुंदेलखंड और बघेलखंड मिलेंगे, और फर्दर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेटो। और जब हम
इन सेंट्रल हाईलैंड्स के लेफ्ट वेस्टवर्ड जाएंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. So we have seen that central highlands lies to the north of Narmada. Okay, north of Narmada, यानी कि यहाँ नर्मदा है, ये नर्मदा बह रही है, एंड यहाँ पर हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स हैं. ओके, सो वेयर इज नर्मदा? लेट्स हैव अ लुक. Here we are. This is Narmada, right? This is Narmada river, and इसके नर्मदा के नॉर्थ में हमें मिलेगा सेंट्रल हाईलैंड्स विच आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू. एंड वी कैन सी हियर जो पेनिनसुलर सेंट्रल हाईलैंड्स हैं वो चंबल, सिंध, बेटवा, केन इन रिवर से ड्रेन होते हैं, यानी कि ये रिवर सेंट्रल हाईलैंड वाले रीजन में है. और फिर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, एंड देन द फर्दर रेंजेस. So we have seen Vindhyan range in the south, Aravalli is on the northwest, we have just seen on the map, and then westward extension merges with the sandy desert of Rajasthan. So ये भी हम देख चुके हैं कि जब हम westward extension में जाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेंगे द सैंडी डेजर्ट ऑफ राजस्थान. सो चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन ड्रेन्स दिस रीजन. ओके, दीज रिवर्स फ्लो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट विच मीन्स इंडिकेटिंग द स्लोप. अब क्या होता है, ये साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, ये रिवर्स फ्लो करती हैं. इसका क्या मतलब है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो स्लोप है वो किधर की साइड है. सो वी हैव सीन साउथ वेस्ट से अगर नॉर्थ वेस्ट की साइड है तो स्लोप इस डायरेक्शन में है, राइट. सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोवर इन द ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड्स वाइडर है वेस्ट में और ईस्ट में नैरोवर है. And as we have seen, the eastward extension is called Bundelkhand and Bagelkhand region, right? So we have just noticed it and we have just seen it on the map. The eastward extension जो है वो बुंदेलखंड और बघेलखंड region है. और हम further eastward जाएंगे अगर तो हमें क्या मिलेगा? छोटा नागपुर प्लेटू जो कि दामोदर रिवर जो कि जिस रीजन छोटा नागपुर प्लेटो को दामोदर रिवर ड्रेन करती है. और ये कब मिलेगा? जब हम जाएंगे फर्दर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में. सो यू कैन सी हियर दिस इज नर्मदा. अगेन एक बार देख लेते हैं जल्दी से. नर्मदा के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स, और सेंट्रल हाईलैंड्स को ड्रेन करती हैं ये सारी रिवर्स, चंबल, सिंध, बेटवा, केन. ओके, और मैंने बताया था साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट इनका डायरेक्शन है. इसका क्या मतलब है? ये रहा, ये साउथ वेस्ट है और ये इस डायरेक्शन में जा रही हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में जा रही हैं ये रिवर. और जब हम यहाँ पर जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा बुंदेलखंड और बागेलखंड रीजन. एंड इन द फर्दर ईस्टवर्ड, इन द फर्दर ईस्ट वी कैन सी द छोटा नागपुर प्लेटू विच इज द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ Central Highlands. Now let's have a look at the Deccan Plateau. And क्योंकि आपको पता है कि जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके दो पार्ट हैं, डेक्कन प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड्स, राइट. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डेक्कन प्लेटू. सो डेक्कन प्लेटू जो है इट इज अ triangular landmass lying south of the river Narmada. So let's have a look. This is our India का southern portion, and we can see here that जो Deccan Plateau है it lies here. It is the triangular region which lies here, the Deccan Plateau, right? और ये कहाँ lie करता है? It lies in the south of river Narmada, and we have seen कि river Narmada इस flow में बहती है, and we can see that नर्मदा के जो साउथ है यानी कि नर्मदा के नीचे we have our
डेक्कन प्लेटू और नर्मदा के ऊपर वी हैव आर सेंट्रल हाईलैंड. ओके, सो पेनिनसुलर प्लेटू के दोनों अलग अलग पार्ट आप कह सकते हो कि नर्मदा रिवर के ऊपर और नीचे हैं. राइट, सो नाउ triangular landmass lying south of river Narmada. This Deccan Plateau is triangular landmass which lies in the south of river Narmada, and then Satpura range in the north, while Mahadev, Kaimur and Mekal lies in the east. Okay, so Satpura range in the north. Let's have a look. Satpura range in the north. Right. So ये रहा. Let's have a look. This is our नर्मदा, दिस इज आर नर्मदा, एंड यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, ट्रायंगुलर शेप में डेक्कन प्लेटो. और सतपुरा रेंज कहाँ पर है, हेयर वील सी द सतपुरा रेंजेस. ओके, नाउ दिस इज आर डेक्कन प्लेटो, द डेक्कन प्लेटो, एंड here we can see the Satpura range, right? This Satpura range, and this is river Narmada. Okay, this is Satpura range here, and here we can see Kaimur range, Mekal range, right? So हमें क्या देखने को मिलता है, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ में वी हैव सतपुरा रेंज, एंड डेक्कन प्लेटो के वेस्ट में वी हैव वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट. और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा Kaimur range, Mekal range, etc. Okay, and the ranges that we have seen here. Okay, Mahadev, Kaimur and Mekal lies in the east. Deccan Plateau is higher in the west and sloping eastward. So west में Deccan Plateau जो है वो higher है. Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Catcher Hill are the extension of Deccan Plateau. So these hills are the extension of Deccan Plateau, and Garo, Khasi and Jaintia hills are three prominent hills ranges from west to east. So जल्दी से हम इनको लोकेट कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि कहाँ पर हिल्स लाई करती हैं, वो हिल्स जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो we'll see here is Garo, Khasi, Jaintia, Garo, Khasi and Jaintia. Okay, and these are the eastward extension, right? These are the eastward extension, and you can see this is Karbi Anglong Plateau, and here we have North Catcher Hills, right? So ये जो है ये क्या है, eastward extension है Deccan Plateau के, right? Okay, so these are Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Catcher Hills are the extension of Deccan Plateau, and Garo, Khasi, Jaintia hills are three prominent hill ranges from west to east, and we have already seen that on the map. Now, the western and eastern ghats mark the western and eastern edges. ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो western और eastern घाट्स हैं वो west और east edges को mark करती हैं. Here ये यहाँ पर Deccan Plateau है, and here we have western ghats, right? And here we have eastern ghats, and here we have Garo, Khasi, Jaintia, North Catcher Hills, Karbi Anglong Plateau, Meghalaya. ये जो है ये eastward extension हो गया, और ये जो है western घाट ये westward हो गया west side में, और eastern घाट जो है ये eastern side में हो गया Deccan Plateau के. ओके, और हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो सतपुरा प्लेटू है वो यहाँ पर साउथ में लाई करता है, और ये जो रिवर है नर्मदा, ये जो सतपुरा प्लेटू है वो नॉर्थ में लाई करता है डेक्कन प्लेटू के, एंड नॉट साउथ. और जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर, वो डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में है. ओके, नाउ अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूस. यू नीड टू रिमेंबर दिस. वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूस है, एंड दे कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली. वेस्टर्न घाट्स जो है वो सिर्फ पासेस के थ्रू ही क्रॉस किए जा सकते हैं. पासेस माउंटेन्स को पास करने के लिए रास्ते होते हैं, राइट? इन सिंपल टर्म आप इसको समझ सकते हो इस तरह से. तो हम एग्जाम्पल देखते हैं थाल घाट, भोर घाट एंड पाल घाट, एंड वी नीड टू रिमेंबर द लोकेशन ऑफ दीज घाट्स, राइट? So you need to
remember the location. Here we have Thal Ghat, Bhor Ghat and Pal Ghat. Okay, और ये घाट कहाँ लाई करते हैं? वेस्टर्न घाट्स में. Okay, so these are major passes, some of the major passes. Now वेस्टर्न घाट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. लोकल नेम वेस्टर्न घाट का सह्याद्री इन महाराष्ट्र. ओके, वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहा जाता है. सो जब बात करते हैं सह्याद्री की तो रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न घाट. ओके, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, अनामलाई हिल्स इन और कार्डिमम हिल्स इन केरला. राइट, सो सह्याद्री इन महाराष्ट्र, Nilgiri Hills in Karnataka and Tamil Nadu, Anamalai Hills and Cardamom Hills in Kerala. So Western Ghat जो है वो elevated range of mountains है. Okay, elevation का क्या मतलब है हम यहाँ पर कि जो Western Ghats है they are at an average elevation of 900 to 1600 किलोमीटर. जो Western Ghats हैं वो 900 to 1600 किलोमीटर के बीच में है इनकी हाइट यानी कि एलिवेशन Western Ghats की. और ये कॉन्टिन्यूस घाट्स हैं, हम ये भी देख चुके हैं. कॉन्टिन्यूस घाट्स का मतलब है दे आर कॉन्टिन्यूसली, माउंटेन्स आर कॉन्टिन्यूसली इन अ रेंज एंड नॉट ब्रेकिंग अपार्ट और नॉट ब्रेकिंग इन बिटवीन. राइट, सो वेस्टर्न घाट इज द ओरिजिन ऑफ वेरियस पेनिनसुलर रिवर. ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ से बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर निकलती हैं और वो पेनिनसुलर रिवर कहाँ किस साइड डायरेक्शन में बहती हैं? सो दिस इज इंडिया. यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर से बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं और वो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. सो नाउ we'll have a look at the eastern ghat here. So eastern ghat is discontinuous and low height mountain ranges. ईस्टर्न घाट्स जो है वो डिसकंटिन्यूस है, हालांकि हमने देखा कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूस है. राइट, सो कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस है लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो डिसकंटिन्यूस है एंड दे आर लो हाइट माउंटेन रेंजेस एज वेल. कंपैरेटिवली टू वेस्टर्न घाट्स वी विल सी कि जो ईस्टर्न घाट है वो हाइट में लो है वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में. तो क्या है हाइट? 600 मीटर. और हमने यहाँ पर क्या देखा था? एवरेज हाइट वेस्टर्न घाट की 900 से लेकर 1600 मीटर के बीच में. नाउ रिवर्स लाइक कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी इरोड द ईस्टर्न घाट्स. राइट, ये भी समझ में आता है कि जो कृष्णा, कावेरी, महानदी एंड गोदावरी ये सब रिवर्स जो हैं जो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं ये क्या करती हैं? जो ईस्टर्न घाट्स हैं उनको इरोड कर रही हैं. ओके, जवादी हिल, पालकोंडा रेंज, नल्लामला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स मेक सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट माउंटेनस हिल्स ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस सम हिल्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो मैंने यहाँ पर हाईएस्ट पीक्स भी ऐड की हैं आपके लिए. सो वी हैव हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट कौन सी है? अनाईमुदी विच इज इन नीलगिरी, केरला. ओके, सो याद रखना है इस बात को कि नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु किसको कहा जाता है? वेस्टर्न घाट्स को. ओके, सो इस तरह से कनेक्ट करके चलना है. So highest peak of Western Ghat is Anaimudi, Nilgiri, Kerala. Highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri. Highest peak of Eastern Ghat is Mahendragiri and you need to remember that. Now, let's have a look at the Deccan Trap black soil area. It is an important feature. Okay? और ये आप connect भी कर पाएंगे किस तरह से? For example, this is our Deccan Plateau. This is our and here we have Western Ghat, here we have Eastern Ghat and now we'll see कि जो डेक्कन ट्रैप है यानी कि ब्लैक सॉइल एरिया. ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म होता है? बिल्कुल उसी तरह जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसी से हमारी ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है. ओके, तो डेक्कन ट्रैप जो है वो जो कि ब्लैक सॉइल एरिया है वो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका?
पेनिनसुलर प्लेटो का. ओके, so these are of volcanic origin, hence the igneous rock, which means as I have already told you कि ये जो जगह है ये वोल्केनिक ओरिजिन है, और आपको ये भी पता है कि किस तरह से फॉर्म हुई थी, और वोल्केनिक ओरिजिन की वजह से यहाँ पर क्या है, इग्नियस रॉक है. इग्नियस रॉक अभी आपको बताया था कि इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं लावा से, जब लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, और लावा के सॉलिडिफाई होने की वजह से ही हमें मिलते हैं ब्लैक सॉइल एरिया, यानी कि डेक्कन ट्रैप. So these are of volcanic origin, hence the igneous rock, and Deccan Trap, which is the black soil area, and it is an important feature of the peninsular plateau. Let's have a look at the Indian desert. Can you see your screen, and you will see the Indian deserts, right? So this is a picture from the Thar desert, and we'll have a look a little bit more about the Indian desert. We'll see the Thar desert here. You'll see the location, and some part of this is our sandy desert in India. Okay, and this is one of a prominent physical feature of India. Okay, so the Thar desert lies towards the western margin of Aravalli Hills. जो Aravalli Hills हैं, जो कि दिल्ली से के करीब हैं, उनके जो वेस्टर्न मार्जिन है वहां पर क्या लाया करते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. सो लेट्स हैव अ लुक जल्दी से यहाँ पर. हियर यू कैन सी द अरावली हिल्स, राइट, अरावली हिल्स, और उसके अरावली के वेस्टर्न साइड में यू विल सी द थार डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, विच इज अ प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर ऑफ द Indian geography, Indian physical geography, right? So lies towards the western margin of Aravalli Hills, Indian desert. यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, यानी कि 150 mm पर ईयर से कम, बिलो 151 mm पर ईयर रेनफॉल होती है, यानी कि यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम है. वेजिटेशन तब होता है जब एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो, सॉइल मॉइस्चर हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सॉइल भी सैंडी है और फिर यहाँ पर रेनफॉल भी लो है, यानी कि बिलो 150 mm, तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत कम है, और यहाँ पर वेजिटेशन भी बहुत कम है. एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर. स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन. जो स्ट्रीम्स हैं वो रेनी सीजन में अपीयर होती हैं जब वहाँ पर थोड़ी बहुत बारिशें होती हैं और थोड़ा बहुत पानी आता है, तो वहाँ पर स्ट्रीम्स जो होती हैं वो रीअपीयर होती हैं. Luni is the only large river in this region. In this desert वाले एरिया में Luni is the only river, that is only large river of the region. Okay, and Barkans, what are Barkans? Barkans का मतलब है एक तरह के sand dunes. Okay, Barkans cover major area, but longitudinal dunes are prominent near the Indo-Pak boundary के पास. longitudinal जो ड्यून्स हैं वो प्रोमिनेंट है, और लेकिन बर्कान्स जो है वो एक बड़ा हिस्से को कवर करती हैं. लेट्स हैव अ लुक जल्दी से. दीज आर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स. ओके, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स एंड दीज आर बर्कान. कैन यू सी दीज आर क्रीसेंट शेप, दिस शेप्ड, राइट? तो बर्कान्स आर क्रीसेंट शेप्ड, राइट? सो these are Barkans, and these are क्या है, ये है sand dunes. Okay, and these are longitude, ये long है, तो you can remember ये longitudinal dunes है. ये crescent shape है, तो you have to remember that these are the Barkans, जो कि sand dunes होते हैं और इनकी crescent shaped form होती है. Then we have transverse and then star-like, but you have to remember these two, longitudinal and Barkans. Okay, and you have to remember the shape as well, transverse and star shaped. And what are these? These are types of sand dunes. तो हमें क्या है, Barkan cover the major area, लेकिन longitudinal dunes are prominent near the Indo-Pak boundary. Indo-Pak boundary के पास जो longitudinal dunes हैं वो prominent है, लेकिन एक बड़े हिस्से को Barkan टाइप के sand dunes cover करते हैं. Now let's have a look at the coastal plains. Okay, so we have studied Himalayan region, we have studied
the northern plain region, we have studied the central highland region, we have studied the Deccan Plateau region, we have studied the desertic area, and now we will be studying the coastal plains. Okay, coastal plains on either side, which is the western and eastern. Okay, the coastal plain, this part is west coastal plain and this part is the eastern coastal plain. Let's have a look now. Narrow coastal strips. Can you see? You can see here, right? This is narrow coastal strip, right? And along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east, along the Arabian Sea, this is our Arabian Sea, this is our Arabian Sea, and we have narrow strip here. Okay, so narrow strip क्या है? Along the Arabian Sea, and we have the eastern coastal plain, and where are they? They are along the Bay of Bengal. This is Bay of Bengal, this is Arabian Sea. Okay, so west coast plain lies near the Arabian Sea, lies along the Arabian Sea, and east coast plain lies along the Bay of Bengal. So narrow coastal strip along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. Okay, we have just seen the western coast lies between Western Ghat and Arabian Sea, यानी कि narrow plain है. So we have seen आपको ये देखना है कि कहाँ पर है. So we have seen कि यहाँ पर लाई करते हैं वेस्टर्न घाट्स और यहाँ पर है अरबियन सी, राइट. सो वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में ये नैरो स्ट्रिप जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर में, दिस इज आर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. ओके, सो western coast lies between Western Ghats and Arabian Sea, and they are narrow plains. Okay, so what we have seen here we have the Western Ghats and here we have Arabian Sea, and इसके बीच में lie करते हैं Western coastal plains. Okay, so and they are narrow plains, right? Now northern part of western coast is called northern part. This is northern part of western coast is called Konkan, which is Mumbai से लेकर गोवा तक. Okay, we'll have a look at it अभी in a map. So western Ghat और Arabian Sea के बीच में western coast है, that is divided into 3 parts. The first part is the कोनकन, उसको कहते हैं कोनकन कोस्ट, जो कि मुंबई से लेकर गोवा के बीच में है. जो सेकंड पार्ट है वो है कन्नड़ प्लेन्स. ओके, दिस इज कन्नड़ प्लेन्स. ओके, एंड जो थर्ड पार्ट है वो है मालाबार कोस्ट. और आपने सुन रखा होगा कि मालाबार समवेयर इन केरला, राइट. तो इसीलिए आप इससे याद रख सकते हैं कि जो मालाबार कोस्ट है दैट इज इन केरला. तो जो वेस्टर्न पार्ट के 3 डिविजन्स हैं, क्या क्या है? कोनकन, कोनकन प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स एंड मालाबार कोस्ट. वो ये है कोनकन यहाँ पर, कोनकन यहाँ तक. ओके, यहाँ तक कोनकन है. हेयर वी हैव गोवा, देन कन्नड़ प्लेन्स यानी कि कर्नाटका वाला पोर्शन, एंड देन केरला में मालाबार कोस्ट. नाउ the plain along the Bay of Bengal are wide and level. Okay, the plain along the Bay of Bengal are wide and level. जो Bay of Bengal वाले plains हैं, यानी कि जो ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न घाट और Bay of Bengal के बीच में जो प्लेन है वो क्या है? वो चौड़े हैं, वाइड हैं, अनलाइक वेस्टर्न घाट जो कि नैरो हैं. ओके, सो Bay of Bengal वाले जो प्लेन्स हैं वो क्या है? वाइड हैं. ओके, वाइड हैं और लेवल्ड हैं. नाउ नदर्न, इसमें भी डिविजन्स हैं. जिस तरह से यहाँ पर 3 डिविजन्स हैं, कोनकन, कन्नड़ एंड मालाबार, इसी तरह नदर्न प्लेन यानी कि जो यहाँ पर ये वाले प्लेन्स हैं इनमें भी डिविजन है, राइट. सो वी कैन सी हियर दिस इज बे ऑफ बंगाल, दिस इज बे ऑफ बंगाल, एंड यहाँ पर हमारे क्या है? ईस्टर्न घाट्स हैं, और ईस्टर्न घाट्स के बीच में ये जो पार्ट है दिस इज ईस्टर्न कोस्ट, और इनमें 2 डिवीजन है,
अब वो क्या है दो डिविजन? लेट्स सी, लेट्स हैव अ लुक. Northern part is called Northern Circle and the southern part is called Coromandel Coast. Okay, northern part is called Northern Circle and the southern part जो है उसको कहते हैं Coromandel Coast. Okay, तो ये आपको याद रखना है. क्या याद रखना है? कि जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो कि दो हैं इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट में. वेस्टर्न घाट में क्या 3 डिविजन्स हैं, और वो 3 डिविजन क्या है? कोंकण, कन्नड़ एंड मलाबार. कोंकण मुंबई टू गोवा, कन्नड़ वेयर इज इट? कर्नाटका साइड में, कर्नाटका के पार्ट में, और मालाबार यानी कि केरला वाला पोर्शन. और जब हम बात करते हैं ईस्टर्न साइड की, यानी कि दिस पार्ट, सो व्हाट वी हैव सीन हियर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 2 डिवीजन. एक तो नदर्न सर्कल और जो सदर्न है वो हमें क्या देखने को मिलता है? कोरोमेंडल कोस्ट. कोरोमेंडल कोस्ट. ओके, नाउ एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फीचर है किसका? ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न प्लेन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है डेल्टाज. जब डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा का मतलब है जब रिवर्स फॉर्म होती हैं, तो जब वो ड्रेन होने वाली होती हैं, किसी भी वाटर बॉडी में अपने आप को ड्रेन करने वाली होती हैं, तो वो ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, वेरियस रीजन वो डिवाइड हो जाती हैं इन अ डेल्टा. डेल्टा कैसा कि क्या शेप होती है? ऐसी होती है ना, तो वो इसी तरह डिवाइड हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल्टा फॉर्म होते हैं वो कौन कौन सी रिवर्स फॉर्म करती हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड कावेरी. ओके, सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है किसका? ये इंपॉर्टेंट फीचर है ईस्टर्न घाट्स का. ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का. यहाँ पर डेल्टा की फॉर्मेशन होती है और यहाँ पर बहुत बड़े डेल्टास बनते हैं. और कौन बनाती है? कौन सी रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. दे फॉर्म prominent deltas in the eastern coast. Now here is a quick fact but important fact. Lake Chilika, which is the largest saltwater lake lying in Odisha, lies in south of Mahanadi Delta. जो महानदी डेल्टा है उसके साउथ में, यानी कि उसके नीचे क्या लाई करती है? लेक चिलिका, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक. एंड कहाँ ये लाई करती है? उड़ीसा में. ओके, एंड दिस इज अ लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया. ओके, एंड इट लाइज इन उड़ीसा. नाउ अब हमने कई सारे फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया है. अब हम एक फाइनल फीचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है द आइलैंड्स. ओके, अब आइलैंड्स क्या है? हमें इस बात को याद रखना है कि इंडिया के 2 प्रोमिनेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं. एंड व्हाट आर दीज 2 प्रोमिनेंट आइलैंड ग्रुप्स? आई थिंक आपको पहले से आइडिया भी होगा. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द सेकेंड वन इज लक्षद्वीप आइलैंड. ओके, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हियर एंड लक्षद्वीप आइलैंड. और ये कहाँ पर है इसका भी आपको आइडिया है. सो ये इंडिया का सदर्न पोर्शन है. हियर वी हैव अरेबियन सी and here we have Bay of Bengal, right? So here we have Arabian Sea and here we have Bay of Bengal. अब Arabian Sea में क्या है? Arabian Sea में हमारे यहाँ पर लाई करते हैं आइलैंड ग्रुप, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप. और यहाँ पर लंबी सी एक आइलैंड की चेन है और वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप. पहले हम इसकी लोकेशन देखेंगे. सो हियर वी कैन सी दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड हियर वी हैव लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, दिस इज अरेबियन सी एंड इन अरेबियन सी वी हैव लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड इन बे ऑफ बंगाल वी हैव द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स. ओके, सो अंडमान एंड ग्रुप एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड. लक्षद्वीप आइलैंड का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये जो आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, ये किससे बने हुए हैं? ये कोरल आइलैंड्स हैं. ये कोरल जो फॉर्मेशन होती है
उनसे बने हुए हैं. So Lakshadweep Island are composed of coral island. Lakshadweep Island are coral islands and they are composed of coral formations. Okay, this is an important point and you need to remember this, that Lakshadweep Islands are composed of coral formations. Now earlier Lakshadweep को हम कहा जाता था Laccadive, Minicoy and Amendive, और लेकिन 1973 में लक्षद्वीप आइलैंड वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप. ओके, पहले इनका क्या नाम था? Laccadive, Minicoy and Amendive, but then in 1973 we recalled it and now we are calling them Lakshadweep Island, okay, which lies in the Arabian Sea. Lakshadweep Island, you need to remember this. They have a very small area that is 32 square kilometer, और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है वो क्या है? कावाराती आइलैंड, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है दैट इज कावाराती आइलैंड. ओके, so you need to remember this. Lakshadweep Island is a very small island, small group of island with only 32 square kilometer area, and Kavarati is the administrative headquarter of Lakshadweep. Now Bay of Bengal, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वी हैव सीन अरबियन सी में लक्षद्वीप है, और बे ऑफ बंगाल में क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. ओके, सो बे ऑफ बंगाल में हम लोगों ने अभी मैप पर देखा, वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो यहाँ पर आपको देखना है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है यानी कि नदर्न पोर्शन है दैट इज अंडमान, और यानी कि नदर्न पोर्शन इज अंडमान, और जो सदर्न पोर्शन है वो क्या है? द निकोबार. ओके, अंडमान एंड निकोबार. एंड आपको एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर. ओके, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में लाई करता है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, एंड जो आपको बताया जा चुका है, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. दीज आइलैंड हैव possess great diversity of flora and fauna. ये जो आइलैंड्स हैं ये ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना है. यहाँ पर आपको फ्लोरा और फोना काफ़ी सारा देखने को मिलेगा. और ये जो आइलैंड्स हैं ये इक्वेटर के क्योंकि करीब लाई करती है. दीज आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दे लाई क्लोज टू द इक्वेटर, राइट. तो जो इक्वेटर की 0 डिग्री लाइन है वहाँ के क्लोजली लाई करते हैं ये आइलैंड्स, और इसीलिए इनका जो क्लाइमेट है वो क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. यानी कि जो क्लाइमेट इक्वेटोरियल पर है, वेट और हीट के साथ, जो वेट एंड हॉट, वो क्लाइमेट उनका वो क्लाइमेट कहाँ पर देखने को मिलता है? इन आइलैंड्स में. क्यों? क्योंकि ये इक्वेटर के पास है. नाउ यू हैव टू कॉमेंट बिलो कि पक्षीपित्ती बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, और जिस जगह पर है आपको उस जगह का नाम भी लिखना है साथ में. ओके, दिस इज योर वर्क. ओके, एंड दीज 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड मेक इंडिया यूनिक एंड रिचर इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो हमने 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स पढ़े, यानी कि हिमालयाज, एंड देन नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, डेजर्ट, आइलैंड एंड कोस्टल प्लेन्स, इन टोटल 6, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और इंडिया को यूनिक बनाते हैं, राइट. सो एंड दे मेक इंडिया रिचर इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा, फौना एंड रिसोर्सेज. और हमें n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हम इन फिजिकल फीचर्स से लेते हैं, और ये फिजिकल फीचर इंडिया को एक बहुत यूनिक और डाइवर्स रीजन बनाते हैं, विच मीन्स इंडिया हैज ऑलमोस्ट all type of physical features. इंडिया में हम तकरीबन सब तरह के फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं. तो therefore let's see, we have completed our second chapter, which is physical features of India. Okay, I hope you have enjoyed the video, and I hope the learning experience was great as well.
Thank you.